have started the last lecture we have taken on Astable multivibrator. You can recall what we have seen, that the capacitor alternatively charges and discharges between 1/3 of VCC and 2/3 of VCC, thereby giving us a square-like pulse with the charging time of high pulse and discharging time of low pulse. So you should remember, when it is high, the capacitor charges; when it is low, capacitor discharges. When it attains the voltage of 2/3 of VCC, it resets. When it attains the voltage less than 1/3 of VCC, it sets. That you should remember. And the formula for frequency of oscillation that we have derived, we have seen in the charging time, the time constant is Ra plus Rb times C, and in discharging, it's discharged through Rb and C, thereby giving us two different timings, Tc and Td. Now the duty cycle also we have calculated, that comes out to be Ra plus Rb upon Ra plus twice Rb, if you can recall. And this is the frequency, 1.44 upon Ra plus 2Rb into C. Now just imagine, in this is the duty cycle. It is said many a times in the Viva or like that, the question is asked that this circuit cannot be used to generate a square wave pulse for duty cycle of 50%. What may be the reason? Can you try? How should I get a 50% duty cycle? You have this formula for duty cycle. Okay. And if you try for 50%, what value should I get? Just try yourself. If I put a 50% duty cycle, it is said it cannot be used for duty cycle of 50%. Let's say if I am saying duty cycle equal to 50%. 50% means 1/2. So Ra plus Rb upon Ra plus twice Rb equal to 1/2 or 0.5. बराबर है? So if I cross multiply, I'll get like this one, Ra 2Rb. If I put here 2Ra plus 2Rb equals to Ra plus 2Rb. 2Rb get cancelled, correct है? What it gives? 2Ra minus Ra equals to 0. Just try this one. If I put Ra equals to 0, Ra plus Rb upon Ra plus 2Rb, ये हो जाएगा for Ra equal to 0, Rb upon 2Rb, और इसलिए 1/2, तो 50% ड्यूटी साइकिल आ जाएगा. But can we put a resistance Ra is a short circuit? No, sir. No. There is a limit that even the resistance value should not be less than 1 kilo. In the design concept, I have already cleared, and it is the value of 0. So that's why this circuit cannot be used for a duty cycle of 50%. Is it clear? Yes, sir. Now I just give you a homework to you, और जो आप शेयर करो मुझे WhatsApp में. Give the schematic to get Astable multivibrator using timer IC 55 for duty cycle equal to 50%. है इसके कैसे कर सकते, देखो 2-3 अलग अलग सर्किट है. So this will be the task to you. Okay? ये एक आपको नया चीज बताएगा, नई चीज पढ़ने लगाएगा. Okay? Now let us come to our new topic. तो Astable, Monostable, Bistable में आपको ऑलरेडी डिफरेंस मालूम है. Astable क्या होता है, Monostable क्या होता है, Bistable क्या होता है. Let us see the monostable multivibrator. In Astable, it runs in free running mode. Means we are not supposed to give any input, but still we are getting a free running output, high low square type of output. In monostable, we'll get a one stable state and another quasi-stable state. So it will remain in the stable state. Once we give the input, one input as a trigger one, it should go to the quasi-stable state and should remain for certain time, which should be deterministic, and then it should come to the stable state. So how this circuit can be used, let us see. As usual, this 8 and 4 are shorted. What is 4? Pin 4. Pin 4 is reset. When it is not in use, what do? We normally connect it to the VCC. Now here, in the earlier Astable, 6 and 2 we have shorted. Here we will short 6 and 7. So 6 and 7 are commonly connected, we can say. And there two resistors were there, Ra and Rb. Here only one resistor will be. So as there is only one resistor, I'll say R only. Why Ra, Rb? Only R. And in 6, 7 shorted, I'll connect a capacitor. See, timing capacitor must be there. As usual, pin 1 is ground. Pin 3 is, let's say I'm taking it output. And as we know, let's say pin 5, we normally bypass through a capacitor of what value? 0.01 microfarad. अब बचा कौन सा पिन बताओ जल्दी? नंबर 2. 2 पिन. यही काम आने वाला है क्योंकि इसका नाम ही ट्रिगर है.
इसी से इनपुट देने वाले हम। कैसा इनपुट देने वाले, इसको एक ऐसे लो ट्रिगर देने, नहीं ये नॉर्मली ये VCC है और ये 0 है, ऐसे समझ, तो इसको ट्रिगर वोल्टेज VT बोलेंगे हम, ठीक है। सो द सर्किट इज क्लियर टू यू। क्या किया यहाँ पे, 6 और 2 की बजाय 6 और 7 शॉर्ट किया है। इसके पहले 8 और 7 में एक रजिस्टर रहता था एस्टेबल में, 7 एंड 6 में एक रहता था, 6 और 2 शॉर्ट रहते थे और उसके थ्रू कैपेसिटर निकलता था। तो जो दोनों कंपैरेटर रेफरेंसेस थे, ट्रिगर और थ्रेशोल्ड, तो 2 और 6 उसी की जगह कैपेसिटर लगा था। अब कैपेसिटर किसको लगा हुआ है, 6 और 7 को लगा है, ठीक है, 6 और 7 को। तो इसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे अभी हम। अब जब हम मोनोस्टेबल बोलते हैं तो वन स्टेबल स्टेट रहती है एंड अनदर क्वासी स्टेबल रहती है ना। यस सर। ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता भाई क्वासी स्टेबल और स्टेबल स्टेट क्या है। बायस्टेबल में दोनों स्टेट स्टेबल रहती है, आप सेट भी कर सकते हैं, रिसेट भी कर सकते हैं। एस्टेबल में कोई भी स्टेट स्टेबल नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। लेकिन यहाँ पे एक जगह वो स्टेबल रहता है और दूसरी जगह ले जाने के लिए हमको इनपुट लगाना पड़ता है। तो इसकी स्टेबल स्टेट कुछ तो होगी, मान के चलो, मान के नहीं चलो, मुझे मालूम ही है इसकी स्टेबल स्टेट लो है, ठीक है। वो मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि मैं हाई लेकर देखूं तो वो नहीं रहेगा उस पर, ठीक है। सो I'll start my explanation of the working. Before the application of trigger volt, I have not applied any trigger voltage yet. It means the trigger voltage is at high voltage, है ना, ये VCC पर है, ये VCC पर है। जब मेरे को ट्रिगर लगाना रहेगा तो मैं इसे लो वोल्टेज दूंगा। So before the application of trigger pulse, pin 2 is at high voltage, okay, and the output you can say will be low. Output will be low in the quiescent state or in the stable state. Now when Q is low, what will be Q bar? What will be Q bar? Yes? High. High. So what happens to the internal discharge transistor? Shorted. टर्न ऑन बोलो पहले, टर्न ऑन बोलो पहले, पहले ऑन होगा तभी तो शॉर्ट हो जाएगा, और वो शॉर्ट होगा ना, कलेक्टर और इमीटर शॉर्ट होगा। इट विल बी टर्न ऑन बिकॉज ऑफ दिस वन, ओके। हेलो, यस सर। so as it will turn on, okay, the collector and emitter, this will act as a short circuit, और इसकी वजह से ये जो पिन 7 है, this will be grounded, ये यहां से कनेक्टेड रहेगा। इसकी वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस कुछ भी वोल्टेज नहीं रहेगा क्योंकि ये टोटली डिस्चार्ज रहेगा। सो व्हाट आई कैन से, इन द स्टेबल स्टेट बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगर पल्स, आउटपुट will be low, Q bar high, that turn on discharge transistor Q1, and that will make the capacitor to discharge fully. So there is no voltage across capacitor. Okay, this is the stable state condition. Now I am applying the trigger. As soon as I apply the trigger, what happens? Let us see. Here I am applying a trigger pulse. ट्रिगर पल्स यानी कैसे रहेगा वो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि ये पहले VCC था, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए 1/3 से नीचे यानी 0 वोल्ट लगा दिया तो भी चलता है, और बहुत ही छोटे टाइम के लिए, बिल्कुल ऐसे छोटे से टाइम के लिए, वेरी शार्प, कई बार तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और ये जो वोल्टेज है ये VCC/3 से ज्यादा रहता है, मतलब VCC ले लिया तो भी चलता है, और ये VCC/3 से नीचे रहना चाहिए, तो मैंने 0 ले लिया। जैसे ही मैं ट्रिगर पल्स दिया, व्हाट हैपेंस, एज द ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड, ओके, जैसे ट्रिगर पल्स लगाते हैं पिन 2 का वोल्टेज क्या हो जाएगा, लो, यानी कि लेस देन 1/3 ऑफ VCC। आप देख रहे हैं पिन 2, ये हमने लो वोल्टेज दे दिया है विच इज लेस देन 1/3 ऑफ VCC, तो क्या होगा, लोअर कंपैरेटर विल बी ऑन, बराबर है क्या। Yes, when I give the trigger pulse is less than 1/3 of VCC, a voltage less than 1/3 of VCC when we apply to pin 2, it will turn on the lower comparator which is connected to the set of RS flip-flop. Thereby, it will set the output. The output will become high. तो यहाँ पे जैसे ही हमने ट्रिगर पल्स देते हैं, यह आउटपुट हमारा हाई हो जाता है। Now, as soon as the output is high, now the output is high. तो अब सब समीकरण चेंज हो गए, जो अभी लो था अब वो सब चेंज हो जाएंगे। तो आउटपुट इज हाई नाउ, so what will be Q bar? low. Low. As soon as the Q bar is low, simply this circuit will be open circuited. Now this capacitor has got a path to charge through this VCC, through R, and now the capacitor will charge like this one. It will charge like this towards VCC. Now the capacitor voltage is charging.
So let me draw that capacitor voltage here. Now the capacitor voltage is increasing, but to across this capacitor only pin 7 is not there, pin 6 is also there, and we know the function of pin 6, that is threshold. When it reaches a voltage of about 2/3 of VCC, this is a voltage across capacitor, this is output voltage. Till that time output voltage is high only. As soon as it reaches the voltage of 2/3 of VCC, it goes about 2/3 of VCC, upper comparator will be high, which is connected to the reset of the flip-flop, and it will reset the flip-flop, or output will be resetted. So output will become low when it reaches the voltage of 2/3 VCC. You got this point? क्यों यहाँ पे लो आ रहा है? और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो लो है ये इसका स्टेबल स्टेट है, ये लो स्टेबल, ये थोड़े देर के लिए हाई होता है लेकिन अपने आप लो वापस आ जाता है, अपने आप जहां आ जाता है वही स्टेबल स्टेट होती है, और जहां पे हम मोमेंटरीली ले जाते हैं वही क्वासी स्टेबल होती है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स से होता है, जो कि हमने ट्रिगर वोल्टेज दिया है उससे. As soon as voltage reaches 2/3 of VCC, upper comparator will be high, which is connected to the reset of the flip-flop, so which will reset the output. Now, as soon as the output is resetted, now the output is reset, मतलब low हो गया, output is low, so Q bar will be high. As the Q bar is high, transistor will be on, ट्रांजिस्टर ऑन, तो कलेक्टर और इमीटर जो है ये शॉर्ट हो जाएंगे. इसका मतलब ये पिन 7 से कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया. ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जमा हो गया है ये यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी, लेकिन इधर हाई वोल्टेज है और इधर लो वोल्टेज है, मतलब ग्राउंड की तरफ है, तो लो रेजिस्टेंस पाथ जिधर रहेगा उधर से डिस्चार्ज होगा. सो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज फास्टली एट दैट इंस्टेंट ओनली, आइडियली उसी समय पे. व्हाई कोई बताएगा ये? जबकि नॉर्मली डिस्चार्ज ऐसे होना चाहिए था, धीरे धीरे ऐसा होगा. अरे भाई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का रेट काय पे डिपेंड करता है? टाइम कांस्टेंट टाउ, और वो होता है उस पाथ में जो रजिस्टर और कैपेसिटर जो उसके पाथ में रहेगा वो. अब चार्जिंग के वक्त आर और सी से जा रहा है और डिस्चार्जिंग के वक्त सी और उसके पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो आइडियली आर इज 0, तो आर सी कितना हो जाएगा? 0. इसका मतलब डिस्चार्ज उसी समय पे हो जाएगा आइडियली, जबकि थोड़ा टाइम लेता है. मतलब ये फाइनाइट, क्योंकि ना थोड़ा ये जो केबल है, ये कनेक्टर है, इसके उसका थोड़ा रजिस्टर रहेगा, तो ये जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ना होते हुए ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा ये डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज अगर हो सकता है, अगर ट्रिगर दिए तो, और ये धीरे से डिस्चार्ज. तो ये आइडियली हमने इस तरीके से बनाया. सो यू गॉट इट दैट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग टाइम देयर इज नो रजिस्टर इनटू देयर पाथ, so time constant is ideally 0, so it will discharge fast. So have you understood this one? Now this pulse we have got, and this is the pulse width we want to calculate. ठीक है ना? मोनोस्टेबल में हम टाइम पीरियड नहीं बोलते, पल्स विड्थ बोलते हैं, बराबर है ना? टर्म करेक्ट है. नाउ दिस पल्स विड्थ वी हैव टू कैलकुलेट. कैसे करेंगे? अगेन विल टेक द सेम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वाला फार्मूला. सो पल्स विड्थ T. So how the voltage across capacitor is given? बताओ जल्दी से, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फार्मूला तो आना चाहिए आपको. फाइनल वोल्टेज. हाँ बराबर. हाँ बोलो. तो वोल्टेज अब तो याद हो जाना चाहिए. फाइनल वोल्टेज इन ब्रैकेट इनिशियल वोल्टेज माइनस VCC ब्रैकेट कंप्लीट. फाइनल वोल्टेज इनिशियल माइनस फाइनल ब्रैकेट कंप्लीट e रेज़ टू पावर माइनस t बाय टाउ. बहुत सारी चीजें ये हमको बताता है, इसको समझने की कोशिश की तो. दैट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन द फाइनल वोल्टेज एंड डिफरेंस ऑफ इनिशियल, कहां से शुरुआत हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, VI माइनस VF. और ये एक्सपोनेंशियली चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है. ओके, एक्सपोनेंशियल चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड टाइम कांस्टेंट. सो हियर इस वेवफॉर्म के हिसाब से बताओ इनिशियल वैल्यू क्या है और कहां तक चार्ज हो सकता था, और फिर बाद में कंडीशन. सो जस्ट सो दैट you yourself should be able to derive it. इसलिए मैं ये सब आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूँ. क्या है? V है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. इनिशियल वैल्यू क्या है? कहां से शुरुआत हुआ? 0. फाइनल वोल्टेज कहां तक जा सकता था? RC के पाथ में से. VC से पक्का, बराबर है.
बिल्कुल वीसीसी बराबर। टाइम कांस्टेंट आरसी। बस आप लोग डिराइव कर सकते हैं इस तरीके से। तो जनरलाइज आपको ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हर टाइम के साथ कैसे चेंज होता है ये वाला रिलेशन मिल गया। फाइनल वैल्यू इज वीसीसी, इनिशियल वैल्यू इज 0 वीसीसी ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आरसी। तो अगर आप ये रिलेशन को लिखेंगे तो इस तरीके से ये रिलेशन आ गया है वीसीसी। चाहे तो आप इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई आरसी। कैसे भी करो, ऐसे करो या वैसे करो। चलो अभी कॉमन नहीं निकालते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि बाद में यहाँ थोड़ा सा माइनस प्लस होने वाला है। वीसीसी माइनस वीसीसी माइनस टी बाई आर सी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो इन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। टाइम, ये टाइम कांस्टेंट, ये स्लो होगा कि फास्ट होगा ये टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। टी तो लिनियरली बढ़ रहा है, टाइम ऐसा तो नहीं बढ़ रहा है कि 2 घंटे आज के फास्ट से सोमवार के और मंगलवार के स्लो है, ऐसा नहीं रहता। टाइम एक जैसे रहता है, लेकिन आरसी के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है और वीसीसी भी ये फिक्स है। ओके, अब एक कंडीशन लगा लेते हैं, हमको टी निकालना है। एट टाइम टी कितना होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, देखो जरा, और वो कंडीशन लिख देना है। कितना पहुंचा है एट टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी, एट टाइम टी इक्वल्स टू टी व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर इज इक्वल टू कितना है एट टाइम टी इक्वल्स टू कैपिटल टी 2/3। बस वही तो कंडीशन रखना है। मैंने क्या बोला आपको, पहला एक इनिशियल वैल्यू पता करो, दूसरा फाइनल पता करो और तीसरा कंडीशन पुट अप करना है। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 2/3 ऑफ वीसीसी। सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। नाउ यू नीड टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2/3 वीसीसी रखते हैं, यहाँ वीसीसी है, यहाँ माइनस टी की जगह आप कैपिटल टी आ जाएगा अपॉन आरसी। सो ये जो है इसको मैं इधर बाहर भेज देता हूँ। तो वीसीसी e raised to power minus t by rc इक्वल टू VCC माइनस 2/3 ऑफ VCC। इसको राइट साइड में भेज देता हूँ, इसको लेफ्ट साइड में भेज दिया। तो व्हाट आई गॉट 1 माइनस 2/3 यानी 1/3 VCC। सो VCC कैंसिल कर सकता हूँ। देखो जरा यहाँ पे क्या आ गया, e raised to power minus t by rc इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो या तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, मैं एक तो लॉगरिथमिक निकाल लेता हूँ। हर बार आपको निकाला है मैंने यहाँ पे लॉगरिथमिक। एक तो इस तरीके से करो कि लॉग लेने से क्या होगा, माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1/3, यानी t बाय आर सी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 3, यानी t इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू आर सी, जो की वैल्यू आती है 1.1 इंटू आर सी। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाता है। ये फार्मूला अपना है आरसी का। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3 को इधर भेज दिया और ये 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय आरसी लिखा, जिसको कभी कभी मैथ्स में नहीं समझने में तकलीफ जाती नहीं, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। तो ये हो जाता है ई अपॉन टी बाय आरसी। टेकिंग द लॉग linear 3 is equal to t by rc, which gives me t is equal to 1.1 rc. So both the things are same. You can do it by any way. तो ये फार्मूला आप याद रखना है। जैसे अपन ने जब भी एस्टेबल में याद रखा है कि 1.44 अपॉन आर ए प्लस ट्वाइस आर बी इंटू सी टोटल, वैसे ये टाइम आपको कोई भी चीज को, अगर कोई ऑपरेशन को डिले करना है कि आप चाहते हैं कि मैं जब ट्रिगर कर दूं वो मोटर या लैंप या कोई डिवाइस इतने देर के लिए ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए, अगर ऑन पहले से है तो आप इस फार्मूले से आर और सी की वैल्यू डिजाइन कर सकते हैं। सपोज मैंने ये 555 है, इसको यहाँ एलईडी दे दिया और मैं इसके पिन 2 से मैं जब थोड़ा देर के लिए इसको ग्राउंड में कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे चाहिए ये एलईडी 5 मिनट के लिए ऑन होनी चाहिए और बाद में ऑफ होनी चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, T इक्वल्स टू 1.1 RC इक्वल टू 5 इंटू 60 सेकेंड। तो ये मिल जाएगा मुझे 300 और यहाँ पे 1.1 RC, C की कोई एक वैल्यू निकाल लूंगा, एज्यूम कर लूंगा और R की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। तो आई कैन डिजाइन माई मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। सो आई विल गिव, इसीलिए इसको पल्स स्ट्रेचर भी बोलते हैं, मोनोशॉट भी बोलते हैं। पल्स स्ट्रेचर क्यों बोल रहे हैं कि एक छोटी सी ट्रिगर पल्स दिया तो वो मुझे एकदम पल्स स्ट्रेच करके उतने टाइम के लिए मिल गया, पर डिटर्मिनिस्टिक टाइम है। आई हैव अ कंट्रोल ओवर टाइमिंग। ओके, सो आई डिजाइन द पल्स ड्यूरेशन। ओके, सिमिलरली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ VCC, इट डज नॉट डिपेंड ऑन VCC। यहाँ VCC आया क्या फार्मूले में, नहीं है। And the design values are very similar to Astable, that your register value should be roughly 1 kilo to 1 kilo to, and you can say some mega ohm, let's say 2 mega ohm range, or C should be 500 picofarad to 2000 microfarad. These are the ranges to design. So is it clear now? Yes, sir.
ओके, एनी डिफिकल्टी? अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये प्रैक्टिकल करता हूँ जानबूझ के, तो ये क्या किया है मालूम है क्या? यहाँ पे अगर वायर रहा ना, एक बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल की बात, जब यहाँ वायर रहा ना तो ये वायर हिल भी जाए ना तो इसको ट्रिगर मिल जाता है, ये हाथ टच भी हो जाए तो इसको ट्रिगर मिलता है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक चाहिए। तो क्या करते हैं हम ऐसे वक्त? देखो पुल अप रजिस्टर का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ये यहाँ से एक रजिस्टर, एक कोई भी 1K या 10K का यहाँ लगा देते हैं, समझो इसको नाम दे दिया RX या कोई भी कुछ भी नाम। हाँ, ये रहे। अब इससे क्या होगा बताओ तो? इससे इसको हाई मिलते रहेगा, हाई वोल्टेज मिलेगा। अब ये वायर हल जाए, हाथ लग जाए तो भी इसको ट्रिगर नहीं मिलेंगे, अनलेस एंड अनटिल आई डेलिबरेटली कनेक्ट इट टू अ ग्राउंड वोल्टेज। जब तक है, क्योंकि ये इसको पुल अप रजिस्टर टाइप के, ये पुल अप जो बोलते हैं ना, इसको, इसका वोल्टेज पुल्ड अप टू द वैल्यू ऑफ VCC। सो ये VCC वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू मिलेगा। एंड इफ आई कनेक्ट इट मोमेंटरीली टू ग्राउंड डेलिबरेटली, देन ओनली इट विल गेट अ ट्रिगर। तो प्रैक्टिकल में हमेशा ऐसे रजिस्टर लगाना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so this is the concept of, you can say, pull-up register. So you have studied the astable as well as monostable. तो आप लोग टाइमिंग बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अब एक बायस्टेबल ले लेते हैं। बायस्टेबल इज सिंपल, आपने उसमें भी देखा था, इसमें भी देखा है, बहुत ही सिंपल है बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। अच्छा, थोड़ा गेसिंग किस चीज का यूज करेंगे तो बायस्टेबल हो सकता है। बायस्टेबल में क्या करते हैं, हमको सेट करते आना चाहिए एक इनपुट देकर, और दूसरे से रिसेट करते आना चाहिए, मतलब एक से लो करते आना चाहिए, एक से हाई करते आना चाहिए। तो ये गेस किस पिन का यूज करके हम कर सकते हैं? मुझे खुशी होगी किस पिन का यूज करूं जिससे मैं सेट और रिसेट कर सकता हूं। एज यूजुअल दिस पिन 4 and 8 आर शॉर्टेड, दिस इज कनेक्टेड टू VCC। आप देखेंगे हर VCC में कभी कभी यह एक छोटा सा कैपेसिटर कनेक्टेड दिखाते हैं। ये हर, जब भी बहुत सारे आईसीज यूज करते हैं ना, तो हर सप्लाई के वक्त एक कैपेसिटर लगा देते हैं 0.01 माइक्रोफेराड का। क्यों? क्योंकि दूर से कहीं तो भी इसको डीसी वोल्टेज आता है और यहाँ रिपल आने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये दिखाया रहता है। ये दिखाया नहीं दिखाया कुछ चलता है, पर जब एक्चुअल डिजाइन करते हैं तो हर आईसी के पास जहां उसका VCC एक 0.01 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगा देते हैं। तो नहीं बता पा रहे आप किस पिन का यूज करूं? एक से सेट होना चाहिए और एक से रिसेट। यस, एक्सक्यूज मी सर। यस सर थ्रेशोल्ड पिन को VCC से वाया स्विच जोड़ देंगे तो वो रिसेट हो जाएगा, एंड ट्रिगर को गुड गुड गुड, यानी पुश हम, बटन। यानी ये आपने अच्छी चीज बताया कि ट्रिगर और थ्रेशोल्ड का यूज करना है। हाँ सर। यानी अपर थ्रेशोल्ड लोअर थ्रेशोल्ड शिमिट ट्रिगर का याद करो, या फिर एक से हम लो कर सेट कर सकते हैं, एक से रिसेट कर सकते हैं। अंदर के दोनों कंपैरेटर किसको कनेक्टेड है? सेट रिसेट को। और दोनों कंपैरेटर के अलग अलग इनपुट कैसे चेंज होते हैं? तो एक ट्रिगर से और एक थ्रेशोल्ड से। दैट इज वेरी फैंटास्टिक। तो ये पिन 2 यहाँ जो है, इसको मैंने एक पुल अप रजिस्टर से यहाँ पे रजिस्टर से दिखा दिया। तो ये नॉर्मली हाई लगा रहेगा इसको पिन 2 को। अगर मुझे इसको सेट पल्स देना है तो मैं यहाँ पे ट्रिगर दे दूंगा। तो ये है सेट इनपुट, RS फ्लिप फ्लॉप का ये सेट इनपुट। पिन 7 का कोई यूज नहीं है, इसलिए इसको ओपन सर्किट रख देंगे, ठीक है। और फिर दूसरा पिन हम यूज कर रहे हैं पिन 6। इसको क्या पल्स देना पड़ेगा हमको? लो देना पड़ेगा कि हाई देना पड़ेगा? इसको हाई देना पड़ेगा कि लो देना पड़ेगा? 6 थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड कब होता है? हाई वोल्टेज देने पर होता है कि लो वोल्टेज देने पर होता है? अरे 2/3 VCC से अबव जाता है तब होता है ना। सो दिस विल बी माय R। तो इसको इसलिए अब हाई वोल्टेज देना पड़ता है, इसलिए इसको मैं ग्राउंड करके रख दूंगा एक दूसरे जैसे इसको हाई करके रखा है, इसको लो करके रख देता हूँ ताकि गलती से फॉल्स ट्रिगर ना मिले। अब अगर मुझे इसको रीसेट करना है तो मैं यहाँ पे हाई पल्स दूं। तो ये इस तरीके से है सेट पल्स और ये रिसेट पल्स। तो इसका फंक्शन समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। और पिन 1 इज एज यूजुअल ग्राउंड, तो दीज आर कनेक्टेड यू कैन से। और पिन 5 में क्या करना चाहिए अपन ने? इसका कोई यूज नहीं है, बाईपास कर देना चाहिए उसको कैपेसिटर के थ्रू। परफेक्ट। ये बताता हूँ, लेकिन अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं और इसको छोड़ दिया ना तो कुछ होता नहीं है। जब हम डिजाइन में कभी गलती ना हो, कोई भाई एक आधा नॉइज या कुछ पिकअप ना करे, इसलिए ये करना पड़ता है। लेकिन जब जनरली मैं प्रैक्टिकल करते हो कई बार ओपन छोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं होने वाला ना। ये कंट्रोल वोल्टेज पे हम कैपेसिटर कनेक्ट कर दें। बट जब डिजाइन रहेगा, कोई प्रोजेक्ट रहेगा, एक बाईपास करना ही चाहिए। सो वर्किंग इज वेरी सिंपल। आई एम एबल टू सेट एज वेल एज रिसेट। तो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बता दो। एट पिन 2 you'll have to apply a voltage less than 1/3 of VCC। आप बोल सकते हैं कि लो वोल्टेज दे सकते हैं। सो इट विल सेट द आउटपुट, मतलब आउटपुट विल बी हाई। सिमिलरली रिसेट के लिए क्या करना पड़ेगा? एट पिन 6 you'll have to apply a voltage greater than 2/3 of VCC। सो नॉर्मली हम लोग VCC कनेक्ट करते हैं, मतलब हाई वोल्टेज दे दिए। सो इट विल मेक द आउटपुट एज लो because it is connected to the reset and this is connected to the set. Is it clear?
Yes, sir. ओके, सो अब थोड़े से जो दो चार एप्लीकेशन मेंशन किए उसमें से कुछ लेता हूं। अब आपको आइडिया तो आ ही गई होंगी कि अगर मैं इसका सपोज शिमिट ट्रिगर मेरे को इसका यूज करना है 555 से, तो कौन से पिन का यूज करूंगा। बाइस्टेबल और शिमिट ट्रिगर में क्या फर्क है आपके ध्यान में है क्या। बाइस्टेबल में हम लोग ट्रिगर देते हैं, मतलब दो ट्रिगर देते हैं, एक तो सेट या रिसेट, और शिमिट ट्रिगर में कोई तो भी इनपुट देते हैं और वो वेव शेप करके हमको स्क्वायर बनाता है। मतलब यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं जो कि एक कोई भी इनपुट हो सकता है जिसके की पल्स प्रॉपरली शेप नहीं है। जनरली हम लोग साइनोसाइडल दिखाते हैं, लेकिन साइनोसाइडल को हमको शेप नहीं करना। अगर ये मैं हाई, मेरे को ये देना है, सपोज ये पल्सेस देना है किसको, टीटीएल आईसी को, लेकिन ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे, ये थोड़ा सा नॉइजी के कारण, ये नॉइजी के कारण ये ऐसे ऐसे। तो क्या करूंगा कि ये कोई भी चीज जो शिमिट ट्रिगर्ड है उसमें से अगर मैंने पास किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर कर देंगे। अब हो गया तो ये लो या हाई होगा, किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बिलो गया तो ये हाई या लो होगा। लाइक दिस आई कैन वेव शेप। तो चलो हम लोग शिमिट ट्रिगर बनाते हैं। तो अब आपके ध्यान में तो आ ही गया होगा कि पिन 2 और 6 का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एज यूजुअल 8 and 4 इट इज नॉट इन यूज। व्हाट डू वी कनेक्टेड टू VCC। और हियर पिन 6 एंड पिन 2, ये दोनों एट अ टाइम हमने कनेक्ट कर दिए, और यहाँ से एक रजिस्टर और दूसरा यहाँ से भी रजिस्टर जो कि इक्वल है, which I can use it as usual। this pin is bypass through। अब देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लिया है सपोज 100 के, और सेम 100 के यहाँ लिया है, यानी कि दो इक्वल रजिस्टर है जिसको कि हमने 6 और 2 को शॉर्ट कर दिया, और यहाँ से एक बाईपास कैपेसिटर लगा दिया। इन तीनों, ये तीनों कनेक्टेड, और यहाँ पे इनपुट दे दिया VI या VIN लिखते हो जो भी हो गया, यानी हम ये जो इनपुट साइकिल दे रहे हैं। आया ध्यान में, इस तरीके से कनेक्शन है। अभी शिमिट ट्रिगर जैसे कैसे काम आएगा जरा कोई बताएगा, कोई रोशनी डाल सकता है इसमें। मैंने ये इनपुट दिया है। सबसे बड़ी बात, व्हाट विल बी द वोल्टेज at this point? Can anybody, when no input is there, suppose the input voltage is 0, what will be the voltage at this point? बताओ जल्दी जल्दी, कितना होगा यहाँ पे वोल्टेज। अरे देखो इधर, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, अपर टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है, आप लोग हो कि नहीं साथ में। ये VCC वोल्टेज है यहाँ पे, फिर एक रजिस्टर है, दूसरा भी रजिस्टर है, और ग्राउंडेड है, मतलब ये सीरीज रजिस्टर है। तो इसके बीच वाले जंक्शन पे कितना वोल्टेज आएगा, दोनों इक्वल रजिस्टर रहेंगे तो यहाँ वोल्टेज कितना रहेगा, 1/2। बस 1/2 ऑफ VCC by 2। और यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे अभी हम AC साइकिल, उसमें ये VCC by 2 ऐड होगा। मतलब ये क्लैंप हो गया ये सर्किट। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये अगर 0 से शुरू हो रहा है तो इसमें इतना DC वोल्टेज ऐड हो गया। इस वजह से ये जो इनपुट यहाँ पे है पिन 6 और 2 पे, ये इसका पॉइंट जो है 0 की जगह ये VCC by 2 कहलाएगा, ये वाला 0। इसमें VCC by 2 ऐड हो गया। ओके, तो जब हमारा ये इनपुट है, अगर ये 0 है और इसमें अगर प्लस VCC by 2 हो गया तो ये क्लैंप हो जाएगा। ये 0 है, यहाँ पे VCC by 2 पे ये ऐसे ओवरराइट करेगा, इसलिए ये VCC by 2 होगा। अब इनपुट साइकिल VCC by 2 से अबाव बढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर VCC by 2, फिर नीचे आ रहा है, निगेटिव, ऐसे करते करते। सो देयर विल बी टू थिंग्स, एक तो पिन 6 है और एक पिन 2। वी नो द फंक्शनलिटी ऑफ पिन 6 and 2। If the voltage at pin 2 goes below 1/3 of VCC, it will set the output, and if it goes above 2/3 of VCC, it will reset the flip-flop. My 2/3 of VCC. This is my 2/3 of VCC, and this is something 1/3 of VCC. Okay. When it goes about 2/3 of VCC, the output will be resetted. So I'll get the output something like this one. Output will be resetted. When it goes below 1/3 of VCC, it will set the output, and in this way the wave will be shaped. Square जो pulse थी, sinusoidal जो wave थी, उसको square बना दिया। It goes about 2/3 of VCC, it will reset. If it goes below 1/3 of VCC, it will set the output like this. Have you understood this one? This is the output. So have you understood this one? Hello? When input goes about 2/3 of VCC, it will reset the output, that is output will become low. When it goes below 1/3 of VCC, so you can say this is lower threshold voltage, this is upper threshold voltage, as we see in the Schmitt trigger, and thereby this circuit will
act as a Schmitt trigger. Have you understood this one? Hello? Yes. वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर ले लेते हैं, इसी के एप्लीकेशन रहेंगे। ये जो एस्टेबल और मोनोस्टेबल है, इसी के ये थोड़े बहुत एप्लीकेशन रहेंगे। ये जो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट है ना, ये पीएलएल में भी काम आता है, बहुत जगह काम आता है। इसको वीसीओ बोलते हैं। यहाँ पे हम पिन 5 का यूज करने वाले हैं। कैसे? लेट अस से इफ दिस 8 and 4 are as usual shorted and this circuit is used in the astable only. astable में क्या करते हैं? 8 और 7 में एक रजिस्टर रहता है, 7 और 6 जो कि शॉर्टेड रहते हैं उसमें एक रजिस्टर रहता है जिसमें 6 और 2 शॉर्टेड होते हैं, और फिर ये कैपेसिटर से बाईपास किए जाते हैं। ये ठीक है ना? ये ऐसे ही देखा था हमने IC 555 में एज यूजुअल। अब यहाँ पे हम लोग पिन 5 का यूज करने वाले। अभी तक के पिन 5 का हम लोग कोई यूज नहीं करते थे। अब क्या किए, यहाँ पे एक पॉट लेकर ये जो है इसको ग्राउंडेड, मतलब ये इससे कनेक्टेड है, और ये जो अपर है पॉट, इसको हमने वीसीसी को कनेक्ट कर दिया। यानी जो पिन 2 और 6 में फिक्स रहता था, वहां पे हमने पिन 5 जो है यहाँ पे एक पॉट लगा दिया। इसकी वजह से ये कंट्रोल वोल्टेज जो है दिस वी कैन चेंज। ये जो वोल्टेज है ये इस पे ऐड हो जाएगा। तो जो 1/3 और 2/3 जब हमने देखा था, अगर उसमें चेंज कर दिए तो क्या चेंज आता है, हमने देखा था कि नहीं? इसमें आपको फिर से दिखाता हूँ, इफ यू कैन रिकॉल। अगर यहाँ पे मैं एक्सटर्नल वोल्टेज ऐड करता हूँ तो यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा, और यहाँ जो वोल्टेज ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज VCO बन गया तो यहाँ पे उसका हाफ आ जाएगा, क्योंकि ये दो रजिस्टर इक्वल रजिस्टर है, तो यहाँ VCO/2 हो जाएगा। द सेम थिंग विल यूज हियर। अगर ड्यू टू एक्सटर्नल वोल्टेज एडिशन, दिस वोल्टेज एक्सटर्नल voltage at this point becomes something addition to 1/3 and 2/3, thereby this total voltage, let us say some name, will give this as weak control. So now earlier the capacitor which was charging and discharging between 1/3 VCC and 2/3 VCC, which was charging between 1/3 VCC and 2/3 VCC, now will be converted to V up to weak control and from its half value weak control। कैसे हो रहा है आपके ध्यान में आया ना? क्योंकि ये दो रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर ये 55K है, 55K है, और यहाँ पे आप एक्सटर्नल वोल्टेज इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। ये कोई तो भी मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किया है, इसमें ऐड हो गया ये वोल्टेज। यहाँ पे अब ओवरऑल वोल्टेज मैंने नाम दे दिया सपोज वीक कंट्रोल, तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा ना उसका। हेलो, उसका हाफ हो जाएगा ना, दो इक्वल रजिस्टर होने की वजह से। तो इसका मतलब जो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज और चार्ज काय पे होता था, 1/3 VCC 2/3 VCC, जो कि यहाँ पे वोल्टेज था। अब नया वोल्टेज चेंज हो गया, हाफ वी कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल, और ये मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये अब बताओ, अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ तो इसके फ्रीक्वेंसी चेंज होगी कि नहीं होगी आउटपुट की? या आउटपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी ना? इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि ड्यू टू दिस वोल्टेज आई एम एबल टू चेंज दी फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसको अलग एक नाम ये भी है V to F कन्वर्टर, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, और इसको नाम VCO भी है। इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेशंस। आई एम एबल टू चेंज द ऑसिलेशंस और फ्रीक्वेंसी बाय मींस ऑफ वोल्टेज, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। और इसका यूज काय में आता है, आपको अगर याद आता होगा तो FM मॉड्यूलेशन में। व्हाट इज FM मॉड्यूलेशन? अल्टीमेटली you are changing the frequency of the carrier in accordance with the modulating signal which is a voltage। तो ये voltage to frequency converter इस तरीके से इसका यूज होता है। So you are able to understand। ये अगर V कंट्रोल को कुछ नहीं दिया तो ये फिक्स हमको आउटपुट मिला रहता है डिपेंडिंग ऑन दिस RA and RB, but due to this external voltage applied, now the references are changed। Instead of 1/3 VCC to 2/3 VCC, it is now changing from half V control to plus V control. And now as I am able to change this control voltage, I am able to change the frequency. So it is acting as voltage to frequency converter, or we can say the oscillations are controlled by voltage. I hope you understood this one.